Good morning, everyone. Morning, ma'am. Good morning. Okay. So let us start today's topic. Okay. So this is our water resource engineering. Okay, and we were discussing the design of canal design, irrigation canal design. Okay. We completed our unlined canal design, unlined on the alluvial type of the soil based on Kennedy's theory and Lacey's theory. Okay, now this is our next lecture, which is your lined canal. Okay, now can you please tell me what is difference between unlined canal and lined canal? Anyone? What is lined canal and what is unlined canal? When we will say, Acha, this is your lined canal and this one is your unlined canal, how we can differentiate? ম্যাম যদি মানে ক্যানালের ভেতরে মানে চারদিকে কোনো প্রোটেকশন দেওয়া থাকে ব্রিক বা মেশিনারি বা কংক্রিটের তাহলে সেটাকে লাইন্ড ক্যানাল বলে। Yes, yes. See, unlined means what? Your this one bed slope, bed and your side slope. Okay, we know that our canal is basically trapezoidal in shape, right? So it will have what? One slope condition will be here and one bed will be here. Okay, so if the contact area, okay, the area of the canal which is in contact with the water, okay, if it is made up of your natural soil, that means there will be no lining and all, so that is your unlined canal. Okay, and if we lined that canal with some layers, okay, whether it may be cement layer, whether it may be masonry layer, okay, brick layers, whatever, if we line those surfaces, then we will say that it is lined canal. Now what are the purpose of the lined canal? Anyone? Why we must give layer, why we must construct layer on this unlined canal? Main purpose? ম্যাম ফ্লাড হলে তো অসুবিধা হবে আনলাইনড ক্যানালে। Flood hole, okay, because of the increased velocity, okay, it will be, your velocity will be more than critical velocity, then what happens? Your particles, the particles of the bed will get eroded, right? If it is unlined canal. Okay, very good. That means what? During flood it may get erosion may occur. Okay, apart from flood also, in other days also, because of this river flow, what happens? Because of this water flow, erosion may occur. Okay, in case of unlined canal, for that we have to maintain the velocity at critical velocity. We have already discussed, right? If the velocity is at critical, then only there will be no silting and no scoring. Okay, no erosion and no sedimentation. But it may not be the case throughout the year. It may not happen that your velocity will always be equal to critical velocity. Sometimes it may be greater or sometimes it may be lesser. If it is greater, then what happens? Your particles will get eroded. Okay, so in order to prevent that, those phenomena, what we are doing? We are lining our canal. Okay, that is one more purpose we can say. Now apart from those, what are the other purposes we will see? Okay, and if we line the canal, if we line some cement layer on that canal, then what happens? What are the different advantages and benefits? That we'll also learn. Okay, then we will see what are the types of the line canal. Rather we can say here section. What are the different section of the line canal, whether it is triangular, circular or trapezoidal in cross-sectional area. Okay, and we will derive, today we will discuss only derivation of the formulas only. In the next class we will solve the numericals. We will see the design procedure and we will solve the numericals. Okay, so purpose of the canal, as I said, to minimize the seepage loss is the main primary purpose of the canal lining. Okay, seepage loss means what? If your see what happens? Suppose this is your canal.
and this is the river flowing through the canal. If it is unlined, then what happens? There will be some voids, right? Then the water will start to seep through the surfaces, whether beneath, below the bed, or from the side surface. Okay, water will get to start to get seep. Okay, seepage loss will occur. Then what happens? Automatically your capacity of the canal will get reduced. Okay, if your capacity reduces, then how it will affect our irrigation system? If the capacity of the canal get reduced, then how it will affect the irrigation system? ম্যাম field অব্দি মানে ওয়াটারটা Yes, ঠিকঠাক পৌঁছাবে না। yes. What does it mean? It means that your capacity reduced means your command area, the area which will be irrigated with this canal water will get reduced. Okay, and your yield of crops will also get reduced. What happens then? Automatically your economic will get affected, right? So this is your main resources or main source of the water from where you have to transfer water from this river to the field. Suppose your field is somewhere here. Okay, so for that what we are doing? We are designing the canal only, right? This is the main head of the canal and this is the head of the field. Okay, so if this is the discharge, if all the water that has been transferred from here till here get lost due to seepage, then the total amount of the water which is reaching here will be lesser. Okay, it will be lesser than the Q value. So if the discharge is less or the quantity of flow of water is less, then what happens? Your total area will, the area which is to be irrigated will get reduced. ठीक है, मतलब कि देखो अगर ये Q अमाउंट का वाटर आता तो क्या होता है? दिस वाज द फील्ड दैट विल बी इरिगेटेड. इफ इट विल गेट रिड्यूस, देन व्हाट हैपन? योर कमांड एरिया विल आल्सो गेट रिड्यूसेस. ओके, so in this case, in this way your irrigation system may get affected. So to minimize the seepage loss, to prevent erosion of the bed, as Masri, Simon, someone said that to prevent the erosion of the beds and the sides, okay, due to high velocity. Okay, this is the second most important purpose. And as I said, if we reduce this seepage loss, then automatically your capacity of the canal will be increased. Okay, now how they are increasing? By increasing the velocity. Okay, that means one, Q is equals to area into velocity. Your cross sectional area is same. Okay, so if we increase the velocity, how we will increase? We are increasing, we are lining the canal, then there will be less erosion, then there will be silting will be less and erosion will be less. Your area will remain intact, resign condition. Okay, so automatically your velocity will increase. So what happens? Your capacity will get increased. Okay, so these are the main purposes of the canal lining. Now what are the benefits? Anyone? What are the benefits? क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? यही जो एडवांटेज है उससे बोलो, क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? So many benefits are there. एक एक बोलो कोई भी. पहले तो वही कि सीपेज लॉस और पर्कुलेशन लॉस विल बी लेस. ठीक है, प्रिवेंट्स इरोजन. If your canal is lined, then what happens? जितना भी velocity से आए वो it is not in contact with the natural soils, natural surrounding soils. Okay, so उससे क्या हो जाता है? Erosion will get reduced. Erosion होने का चांस ही नहीं होगा, right? So it prevents erosion. ठीक है, as I said, अगर ये सब तुम्हारा सीपेज लॉस ये सब कम हो जाएगा तो कैपेसिटी विल गेट इंक्रीज. कैपेसिटी इंक्रीज मतलब क्या? कमांड एरिया विल गेट इंक्रीज. ओके, एंड योर मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट है. देखो बार बार इरोशन होता जा रहा है तो क्या आ रहा है? वी हैव टू मेंटेन दोस कैनल. नहीं तो तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल क्या हो जाएगा? घटता जाएगा. मतलब डेप्थ जो भी है इफेक्टिव डेप्थ इट विल गेट रिड्यूस, राइट? स्लोली वहां पे अगर सिल्ट मतलब स्कोरिंग होके सिल्टिंग होता जा रहा है तो क्या हो जाएगा? योर डेप्थ विल गेट रिड्यूस. तो उससे क्या हो जाएगा? वी हैव टू मेंटेन, मतलब हमको उसको मेंटेन करते रहना पड़ेगा, ये रिपेयर करते रहना पड़ेगा. तो इफ वो सब होगा ही नहीं लाइनिंग की वजह से, तुम्हारा रिपेयर और मेंटेन करने का भी जरूरत होगा नहीं पड़ेगा. ओके,
सो इंक्रीज डिजाइन लाइफ, ऑब्वियसली मेंटेनेंस ये सब करने का उतना खर्चा नहीं बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो जा रहा है, ठीक है। एज वेल एज योर लाइफ ऑफ द कैनल विल इंक्रीज, ओके, एंड रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैनल। ये वाला का मतलब क्या है, देखो क्यू इक्वल्स टू क्या था, Q इज इक्वल्स टू A इंटू V, ठीक है। डिस्चार्ज हम देखो लाइन और अनलाइन में हमको फिक्स रखना है, राइट, वेदर इट इज लाइन और अनलाइन, हम जो भी डिजाइन डिस्चार्ज कर रहे हैं दैट इज फिक्स्ड, Q विल बी फिक्स्ड, उतना ही डिजाइन हमको चाहिए, डिजाइन डिस्चार्ज, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इन द लाइन कैनल योर V इज व्हाट, V इज इंक्रीजिंग, ठीक है। नाउ योर Q इज सेम, सो ऑटोमेटिकली योर क्या हो जाएगा, अगर V बढ़ रहा है तो ये मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट शुड बी reduced to keep the Q to be constant, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे अगर देखो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो रहा है, तो क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल अगेन बी रिड्यूस्ड। स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए जितना लाइनिंग लगेगा, ज्यादा सबसे मतलब बड़ा मतलब ज्यादा क्रॉस सेक्शन के लिए ज्यादा लाइनिंग लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसका देखो एरिया चौड़ाई बढ़ जा रहा है, तो चौड़ाई बढ़ जा रहा है तो लाइनिंग का विड्थ भी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसका स्लोप बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा लाइनिंग का जो भी है स्लोप, सिर्फ क्रॉस सेक्शन एक के ऊपर ही तुम्हारा ये डिपेंड कर रहा है कि कितना क्रॉस सेक्शन है, उसके ऊपर ही हम लोग लाइनिंग बिठा रहे हैं। तो जितना तुम्हारा एरिया बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक इफ लेंथ इज सेम बट क्रॉस सेक्शनल अगर वाइडर होता जा रहा है तो तुम्हारा लाइनिंग भी वाइडर करना पड़ेगा, राइट। तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड अगर वैसा हुआ तो। लेकिन इन दिस केस क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, Q को कांस्टेंट रखना है, सो हमको A रिड्यूस करना पड़ेगा। सो इन दैट केस योर क्रॉस सेक्शन विल बी रिड्यूस एंड ऑटोमेटिकली योर होल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइनिंग विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जा रहा है, ओके, वेरएज बेनिफिट ज्यादा हो जा रहा है। क्यों, कमांड एरिया कैपेसिटी बढ़ रहा है, मतलब बेनिफिट आएगा। बेनिफिट कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू से आएगा, ठीक है। जो भी तुम क्रॉप यील्ड करोगे उसको अगर बिक्री करके जो भी रेवेन्यूज आ रहा है, दोज आर द बेनिफिट्स, ओके। I think this is clear, everyone. Now please take out your pencil and copy and pencil, ठीक है, हम लोग derive करेंगे। तो what I said, there are two types of the canal lining, ठीक है। मतलब जो lined canal होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। पहले हम लोग पढ़े थे कि एक ही तरह का है, that is cross section is trapezoidal, ठीक है। But in case of line canal, they will ask you to design in, मतलब दो केस हो सकता है, if your discharge is very high देन कौन सा सेक्शन ड्रॉ करना है, एंड इफ योर डिस्चार्ज इज वेरी लेस, मतलब लेस देन 50 क्यूमेक्स, देन कौन सा क्रॉस सेक्शन तुमको डिजाइन करना है, ओके। डिजाइन मींस व्हाट, वी हैव टू डिजाइन द क्रॉस सेक्शन ओनली। सो दो केस आ रहा है, एक आ रहा है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, दूसरा आ रहा है तुम्हारा ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये वाला अभी फिलहाल याद रखो कि क्या बोल रहा है ये, कि विद सर्कुलर बॉटम और यहाँ पे विद राउंडेड बॉटम, ये हम बोलेंगे क्या है, ओके। देखो, इफ योर डिस्चार्ज इज लेस देन 50 क्यूमेक्स, क्वेश्चन में प्रॉब्लम में दे विल नॉट आस्क यू टू डिजाइन रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर या ट्रेपेजॉइडल, दे विल सिंपल टेल यू टू डिजाइन लाइन कैनल, ठीक है। अब तुमको कौन सा डिजाइन करना है, उसको ट्रायंगल पकड़ के करना है या ट्रेपेजॉइडल पकड़ के करना है, कैसे करोगे, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्चार्ज दे हैव प्रोवाइडेड। अगर डिस्चार्ज इज लेस देन 50 क्यूमेक्स, कोई भी डिस्चार्ज दे दे जिसका वैल्यू लेस देन 50 है, दैट मींस यू हैव टू डिजाइन फॉर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। अगर 50 क्यूमेक्स से ज्यादा तुमको वैल्यू दिया है प्रॉब्लम में, देन वी हैव टू गो फॉर ट्रेपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन, ओके। तो देखो ट्रायंगुलर बेसिकली ऐसा ही तो दिखने में होता है क्रॉस सेक्शन, राइट। लेकिन इस चीज का प्रॉब्लम क्या होगा, एनीवन, अगर ऐसा होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम क्या होगा, अगर ऐसा पूरा ये वाला एकदम वर्टेक्स इसका ऐसा है, पॉइंटेड है, तो प्रॉब्लम क्या होगा, सी प्रॉब्लम विल बी व्हाट, एज वी गो बिलो, तुम्हारा वेलोसिटी क्या होता है, बढ़ता है ना घटता है, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं फ्लो का वेलोसिटी, जो भी वाटर फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी बढ़ेगा ना घटेगा, नीचे की तरफ कमेगा, राइट। वी ऑलरेडी डिस्कस इन स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट, जैसे जैसे वेलोसिटी जाता है उसका डायग्राम कैसा था, एनीवन, सपोज दिस इज द रिवर बेड
दिस इज द सरफेस, ओके, रिवर सरफेस। तो हम लोग बोले थे जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएगा तुम्हारा वेलोसिटी विल रिड्यूस, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे वेलोसिटी रिड्यूस होता होता जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऐसे रिड्यूस होता जा रहा है। तो जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी कम है, तो इफ योर वेलोसिटी इज लेस तो क्या हो जाएगा, वहां पे स्कोरिंग होगा ना सिल्टिंग होगा, मतलब यहाँ पे पार्टिकल्स वेलोसिटी कम होने से क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स की वेट की वजह से दे विल स्टार्ट टू सेटल डाउन, राइट। यहाँ पे वेलोसिटी लेस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्टिकल सेटल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पे पार्टिकल सेटल करते करते अल्टीमेटली इट इज अफेक्टिंग योर डेप्थ। अगर ये वाटर सरफेस है तो ये इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमको चाहिए कि ऐसा कंडीशन अगर हम करेंगे देन इट विल नॉट बी गुड क्रॉस सेक्शन, राइट। इससे तुमको कमांड एरिया में अगेन इफेक्ट आएगा, कम हो जाएगा, वो पानी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो क्या करना है देन, अच्छा, so this is called the zone of stagnation, this is called zone of stagnation। मतलब क्या होता है, स्टैग्नेंट वाटर जो बोलते हैं ना, स्टैंड स्टिल वाटर, वही है। यहाँ पे रुक जाएगा, पार्टिकल जमना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी लो है, सो सिल्टिंग विल ऑकर, मतलब यहाँ पे जमना, सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट करेगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अनदर सेक्शन, ओके। कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, हम इसको राउंड शेप कर देंगे। नीचे वी विल इंक्रीज दिस एरिया बाय सिंपली कटिंग दिस सेक्शन एंड यहाँ पे क्या कर देंगे, सर्कुलर, एक सर्कुलर बॉटम दे देंगे। सो हम लोग का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, ऐसा स्ट्रेट, फिर एक सर्कुलर ऐसा आर्क आएगा, फिर स्ट्रेट। तो दिस इज आवर कैनल, लाइन कैनल डिजाइन, ट्रायंगुलर लाइन कैनल। इसको ऐसे ये वाला का हमको डिजाइन करना है, ऐसा वाला सेक्शन को डिजाइन करना है, ओके। सिमिलरली ट्रापेजॉइडल का भी देखो, यहाँ पे वही केस आ रहा है, वर्टेक्स वर्टेक्स, तो ऐसा पॉइंटेड हमको नहीं रखना है। तो देन व्हाट वी विल डू, इसको हम लोग राउंड, यहाँ पे राउंड बॉटम कर दे रहे, देखो स्ट्रेट, फिर राउंड आ रहा है, यहाँ पे सर्कुलर आर्क एक आएगा, फिर स्ट्रेट जाएगा, फिर सर्कुलर आर्क आएगा, फिर स्ट्रेट जाएगा। सो दिस एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन दैट वी हैव टू डिजाइन। ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ओके, ये और ये। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो अब हमको डिजाइन करने के लिए फर्स्ट वी लेट अस डिराइव सम वैल्यूज, ओके। कुछ कुछ वैल्यूज हम लोग डिराइव करते हैं। तो क्या क्या डिराइव करना है हमको, मेनली एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। हम लोग क्या क्या डिजाइन करते आ रहे हैं इन लाइन कैनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल रहे हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं, फिर आर का वैल्यू, आर इज व्हाट, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस विच इज एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर, ठीक है, एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर, प्लीज रिमेंबर वेटेड पेरीमीटर, ओके। सो हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वेटेड पेरीमीटर ये सब का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, हम बोले थे ट्रायंगुलर का ऐसा होगा दिखने में, स्ट्रेट, फिर सर्कुलर बॉटम, फिर स्ट्रेट, ठीक है। सपोज ये वाला है तुम्हारा बैंक, ठीक है, टॉप ऑफ द बैंक, मतलब जो कैनल का एकदम टॉप मोस्ट पोर्शन है, ये वाला है, ठीक है। तो तुम्हारा पानी का इधर ही होगा, वाटर लेवल विल बी हियर ओनली एट द टॉप ऑफ द बैंक, उसका वाटर लेवल और टॉप ऑफ द बैंक का लेवल सेम रहेगा। बोलो ना मैम, एक फ्री बोर्ड था कैसे, हाँ, यस, फ्री बोर्ड, मतलब इट विल बी समवेयर लेसर देन द टॉप ऑफ द बैंक, जो कि ये है, ओके। दिस इज व्हाट, एफएसएल, फुल सप्लाई लेवल, ओके। একটু মিউট করে দাও। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज नोन एज द फ्री बोर्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको इसको एरिया निकालना है, तो लेट अस कुछ हम लोग यहाँ पे इनपुट करते हैं, ओके। सपोज दिस इज द डेप्थ ऑफ द कैनल, मतलब वाटर का एफएसएल फ्रॉम द बॉटम मोस्ट लेवल जो भी है उसको अगर हम करेंगे, दिस इज सपोज वाई, डी भी हो सकता है, कहीं कहीं पे स्मॉल डी या कैपिटल डी भी हो सकता है, हियर वी आर डिनोटिंग इट एज वाई, ओके। और ये क्या कर रहे हैं, ये वाला सर्कुलर आर्क देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से खत्म हो रहा है, ओके। सो रेडियस, दिस इज व्हाट, ये भी y होगा एंड ये भी y होगा, क्यों, बिकॉज y इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क। ये जो सर्कुलर आर्क है उसका रेडियस है, तो रेडियस तो सब जगह सेम होगा ना,
तो सर्कल यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो मतलब ये वाला भी y ही रहेगा, रेडियस ही रहेगा, ये वाला भी रेडियस y ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे रेडियस इज व्हाट, यहाँ पे रेडियस इज नथिंग बट द डेप्थ ऑफ द वाटर, सपोज दैट इज y। ओके, एंड द एंगल कैसा होना चाहिए कंस्ट्रक्शन जब करते हैं, योर एंगल ऑफ दिस लाइन कैसा होना चाहिए, ये रेडियस और ये जो तुम्हारा सर्कुलर आर्क जहाँ पे खत्म हो रहा है उसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि देखो ये रेडियस हो गया और यहाँ पे सर्कुलर आर्क खत्म है, तो कहाँ पे खत्म होना चाहिए आर्क, जहाँ पे तुम्हारा ये रेडियस और ये वाला 90 डिग्री फॉर्म करेगा विद दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये रेडियस और ये वाला लाइन 90 डिग्री में होगा, तब वहां पे हमको सर्कुलर आर्क उतना तक देना है। क्लियर? नाउ दिस इज 90 डिग्री, सपोज ये वाला एंगल है थीटा, ये वाला भी एंगल थीटा, दोनों सेम ही तो है, ये तो बीच में है ये वाला। ठीक है, ये हाफ ऑफ द आर्क, ये हाफ ऑफ द आर्क, सो दिस एंगल इज थीटा, तो एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ठीक है, अब बोलो तो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, देन व्हाट विल बी दिस एंगल, ये अगर थीटा है देन व्हाट इज दिस एंगल, 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखो ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री है, ये वाला थीटा है, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा है। ठीक है, अब ये 90 डिग्री है फ्रॉम दिस, ये वाला क्या है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री का एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, तो दिस इज नथिंग बट द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जिसका ये एंगल है 90 डिग्री, दिस इज 90 माइनस थीटा, देन व्हाट विल बी दिस वैल्यू, एंगल कितना होगा, थीटा। ठीक है, मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस दिस प्लस दिस। ठीक है, तो करके ये वाला आ जाएगा, देखो थीटा आएगा, कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, दिस इज 180 डिग्री माइनस 90 माइनस थीटा, तो आएगा तुम्हारा थीटा। ठीक है, तो ये भी थीटा है, तो ये भी सेम थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नेम डाल देते। ठीक है, सपोज ए बी सी डी। ठीक है, मतलब ये वाला लाइन स्ट्रेट लाइन ए बी है, फिर सर्कुलर आर्क बी सी है, फिर स्ट्रेट लाइन सी डी है। ठीक है, नाउ फ्रॉम दिस ट्रायंगल, मतलब ओ ए बी ट्रायंगल, ठीक है, ओ ए बी ट्रायंगल से हमको क्या चाहिए, हमको ये ए बी का डिस्टेंस चाहिए। जब भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वी शुड नो दिस लाइन का ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस। ओके, तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम दिस ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू ओ बी बाई ए बी परपेंडिकुलर बाई बेस, लिख सकते हैं ना, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। नाउ परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है, y है, एंड बेस इज हाउ मच, ए बी। ठीक है, तो इस वाले से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी का क्या आएगा वैल्यू, y cot theta है श्वेता मैम। yes, so AB is nothing but y by tan theta, that is y cot theta। ठीक है, ये लिख लो तुम लोग, so AB will be your y cot theta। ठीक है, तो AB y cot theta है, ये भी तुम्हारा CD and AB must be same। ठीक है, तो CD will also be y cot theta, ये याद रखना है। ओके, so AB is y cot theta, CD is also y cot theta। ठीक है, ये वाला नोट डाउन करके रख सकते हो। नाउ हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एरिया निकालना है। ओके, सो सपोज, अच्छा रुको तो पेन, एक पेन निकाल लेते हैं। ओके, क्या आ गया ये, तो ये तक आ गया। अब यहाँ से तुमको एरिया अगर निकालना है, ये वाला का जो भी है, ये वाला एरिया, मतलब ओ बी सी एरिया अगर तुमको निकालने के लिए बोला गया है, देन हाउ वी विल कैलकुलेट, हाउ वी विल कैलकुलेट। ठीक है, सपोज तुम्हारा यहाँ पे एक सर्कुलर है। ठीक है, इसका रेडियस है तुम्हारा कितना, रेडियस इज योर आर। ठीक है, और कोई भी एक एंगल अगर लेंगे हम लोग, सपोज ये कोई भी एक एंगल लेंगे दैट इज थीटा। ठीक है,
तो हम लोग बोल सकते हैं ये सर्कल का एरिया इज इक्वल्स टू क्या है, पाई आर स्क्वायर है ना, एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर है, राइट। और तुम्हारा रेडियन कितना होगा, कितना रेडियन मिला के तुम्हारा पाई आर स्क्वायर आएगा, एनीवन? हाउ मच रेडियन इज इक्वल्स टू वन सर्कल का एरिया, मतलब होल सर्कल का एरिया विच इज पाई आर स्क्वायर। कितना रेडियन मिला के होता है? हाँ কি গো কি হচ্ছে এটা? আছো কি তোমরা? ম্যাম থিটা তো মানে 360 ডিগ্রি হবে, মানে ডিগ্রিতে মনে হচ্ছে। 2 পাই ইকুয়ালস টু পাই আর স্কয়ার বলতে পারি না আমরা? ये पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल इज इक्वल्स टू कितना है, पूरा एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। 360 को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 पाई, सो 360 या 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू कितना एरिया कवर करता है, पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करता है, राइट। सो 1 डिग्री अपॉन रेडियन इक्वल्स टू कितना एरिया कवर करेगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई, दैट इज आर स्क्वायर बाय 2, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे कितना डिग्री है, देखो यहाँ पे टोटल ये एरिया कितना एंगल के लिए सब्सटेंड कर रहा है, कितना एंगल सब्सटेंड करके ये वाला एरिया हमको आ जाएगा ओ बी सी। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो टोटल एंगल कितना है 2 थीटा, ठीक है। सो अगर 2 थीटा मतलब 2 पाई मिला, 2 पाई को अगर हम लोग एंगल पकड़ेंगे टोटल, तो कितना एरिया कवर कर रहा है, ये टोटल एरिया कवर कर रहा है पाई आर स्क्वायर। तो फिर 2 थीटा अगर लेंगे तो कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है, कितना एरिया फॉर्म करेगा 2 थीटा से, तो सिंपल ये वाला यूनिटरी मेथड से करना है। सो 2 थीटा इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू 2 विच इज नथिंग बट 2 कट जाएगा, सो थीटा आर स्क्वायर। क्लियर है ये वाला? So what is the area which is subtended by this 2 theta angle, that is your theta r square, whereas r का वैल्यू क्या है यहाँ पे, रेडियस है, रेडियस इज नथिंग बट दी y, so 2 theta से कितना एरिया कवर कर रहा है, थीटा y स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये वाला एरिया, ये वाला पोर्शन क्लियर है? 2 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई नॉट इक्वल्स टू, इट विल सब्सटेंड, मतलब 2 पाई रेडियन एंगल कितना एरिया फॉर्म करेगा, पाई आर स्क्वायर एरिया फॉर्म करेगा। 1 रेडियन कितना फॉर्म करेगा, आर स्क्वायर बाय 2, सो 2 थीटा कितना फॉर्म करेगा, सिंपली यूनिटरी मेथड। अब यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, रेडियस विच इज r इज रेडियस, तो यहाँ पे r विल बी व्हाट, y, w y, सो r की जगह पर यहाँ पे y बिठा दिया है। ये क्लियर है? क्लियर है? बोलो एनीवन? अच्छा, ये एरिया इतना कवर कर रहा है, 2 थीटा मिलाकर एरिया इतना कवर करेगा, मतलब एरिया ऑफ दिस, ये जो आर्क है ओ बी सी आर्क कितना है, थीटा वाई स्क्वायर है। नाउ व्हाट इज दिस लाइन, बी सी का लाइन कितना होगा, लेंथ कितना होगा, इफ द एंगल इज 2 थीटा, माने थीटा वाई, थीटा 2 थीटा वाई, 2 थीटा वाई, ठीक है। सो दिस विल बी, मतलब r जो हम लोग बोलते हैं ना s इक्वल्स टू r थीटा, वैसे यहाँ पे r तो है तुम्हारा y और थीटा कितना है, यहाँ पे 2 थीटा है, सो दिस विल बी y इंटू 2 थीटा, ओके। सो 2y थीटा है, एंड ये वाला तो हमको पता है कितना y cot थीटा है, ओके। सपोज दिस आर द एरिया, एरिया 1 ये रेक्टेंगल ट्रायंगल है, एरिया 2 भी ट्रायंगल है, दोनों सेम एरिया है, ठीक है। एंड ये वाला जो है दिस इज द थर्ड एरिया, ठीक है। सो द एरिया विल बी समेशन, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया। Now what is the formula for this area? ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया 1 का फॉर्मूला क्या है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? मैम हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। यस, सो हाफ इनटू बेस कितना है, y cot थीटा, एंड हाइट कितना है, y है, ठीक है। तो 2 का भी सेम है वही, और ये 3 नंबर का जो भी एरिया है वो तो हम निकाल ही चुके, कितना है, थीटा वाई स्क्वायर है, तो सिंपल यहाँ पे पुट कर दो। सो एरिया इक्वल टू क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
ठीक है, इसका भी सेम है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और 2 नंबर है थीटा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज द एरिया। ओके, ये वाला आएगा तुम्हारा एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर लाइन कैनल। तो दिस इज द फॉर्मूला, यू कैन नोट इट डाउन। ओके, अब दूसरा पेरीमीटर निकालो। तो पेरीमीटर क्या होगा, तुम लोग बोलो तो कितना आएगा पेरीमीटर? वेटेड पेरीमीटर, मतलब एफएसएल के नीचे जो भी पेरीमीटर है वी हैव टू कैलकुलेट दैट पेरीमीटर। सो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ओके, दिस इज द वेटेड पेरीमीटर। सो व्हाट इज द वैल्यू, टेल मी। मैम 2y cot थीटा प्लस y 2 थीटा। ओके, सो ये आएगा देखो y cot थीटा, ये भी y cot थीटा है, ठीक है, एंड दिस इज y 2 थीटा है, ये y 2 थीटा। सो आके देखो 2y cot थीटा प्लस y 2 थीटा, यहाँ पे 2y को कॉमन ले लो। सो दिस इज द पेरीमीटर। ओके, वेटेड पेरीमीटर। देन व्हाट इज द रेडियस, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस r इक्वल्स टू क्या था, एरिया बाय पेरीमीटर। तो कितना आएगा देखो r का वैल्यू कितना आएगा? y by 2 আসছে তো। यस, सो एरिया बाय पेरीमीटर, एरिया यू गॉट दिस मच, ठीक है। अभी कौन ज्वाइन कर रहा है? सो ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है? सो r इज y by 2, क्लियर? एवरीवन क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर, क्यों तो बोल से ही ना। यस मैम। ओके, अब सिमिलर वे में तुमको क्या चाहिए, तो सिमिलर वे में ये कैलकुलेट करना है। देखो अच्छा, ये है तुम्हारा रिवर, दिस इज ट्रैपेजॉइडल। ओके, ट्रैपेजॉइडल कैसे, देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, एक कर्व है, फिर स्ट्रेट है, फिर कर्व, फिर स्ट्रेट, ठीक है, दिस इज ट्रैपेजॉइडल, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सो ये है तुम्हारा टॉप ऑफ द बैंक, दिस इज एफएसएल, दिस इज फ्री बोर्ड। ओके, तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट है, तो ये वाला भी वाई डेप्थ, ये वाई डेप्थ सेम है, यहाँ पे डेप्थ सेम है यहाँ पे थ्रू आउट। ओके, तो और आर्क कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये वाला आर्क खत्म हो रहा है। सो इट विल फॉर्म 90 डिग्री विद दिस स्ट्रेट लाइन, 90 डिग्री विद दिस स्ट्रेट लाइन। ओके, सो इफ दिस इज y then this is also y and the angle will be theta, same theta, ठीक है। वही ट्रायंगुलर ही है, बस उसमें क्या हो, बीच में और एक रेक्टेंगल घुस गया है, ठीक है। जो जो एरिया तुम जैसे कैलकुलेट करो वैसे ही करना है, सिर्फ बीच में एक रेक्टेंगुलर के एरिया आ जाएगा और पेरीमीटर में एक ये वाला टर्म आ जाएगा विच इज कैपिटल B, ठीक है। तो सेम वही प्रोसीजर है, 90 माइनस डिग्री, ये अगर ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो 90 माइनस डिग्री थीटा है एंड दिस इज थीटा। ओके, ये वाला हम लिख दिए ABCD करके, सेम है, सिर्फ यहाँ पे CD ऐड हुआ है। ओके, बाकी सब सेम है, y tan थीटा, y cot थीटा, इसको हो जाएगा AB, ठीक है। और इसी से तुम्हारा एरिया भी आ जाएगा, अच्छा ये हट जाएगा, ओके 3 नहीं होगा यहाँ पे। सो दिस इज y स्क्वायर थीटा जो भी है ये वाला एरिया, ठीक है, एंड दिस इज y cot थीटा, दिस इज नाउ y थीटा, ठीक है। अब ये y थीटा क्यों है, देखो ये थीटा था, पिछले वाले में 2 थीटा था, टोटल मिला के इसलिए y 2 थीटा। ये वाला है तुम्हारा y थीटा, सेम ये वाला B है, ये वाला y थीटा है और ये वाला y cot थीटा है। कैसे आया, यहाँ से आया है, क्लियर है ना ये? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? टिल नाउ इट इज क्लियर? यस मैम। ओके, ठीक है। तो एरिया में क्या क्या चाहिए, देखो एरिया में चाहिए 2 into 1, मतलब कि ये और ये सेम है, सो 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। 2 into ये और ये दोनों सेम है, तो 2 into 2 और ये प्लस 3, ठीक है। तो ये वाला का एरिया, ये वाला का एरिया ऑलरेडी वी नो, राइट, एंड वी नो दिस एरिया आल्सो। क्या हो जाएगा, सिंपल B into y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 into y cot थीटा, ठीक है, इसका हो जाएगा तुम्हारा 2y स्क्वायर थीटा, ठीक है, और B into y। अच्छा यहाँ पे ना क्या हो जाएगा बोलो तो, गलत होगा, यहाँ पे शायद 2 नहीं होगा ना, 2 হবে না তো এখানে, 2 হবে কি হবে না বলো আমাকে। यहाँ पे तुम्हारा हाँ
ना दिस ये वाला एंगल हम लोग सिर्फ ये वाला 2 का जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखो दिस विल बी ओनली थीटा, ठीक है, दिस विल बी थीटा, दिस विल बी थीटा, ओके। सो यहाँ पे बाई 2 आ जाएगा, थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, ये भी थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा बाई 2 वाई स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ पे तुम्हारा थीटा बाई 2 आ जाएगा, क्लियर है ना? ठीक है, तो तब जाके तो ये 2 कट जाएगा, तो हाँ, क्योंकि इन दैट प्रीवियस केस देखो थीटा क्या था, इन द प्रीवियस केस तुम्हारा ये डायग्राम क्या था, ओहो देखो इन प्रीवियस केस हम लोग ये वाला टोटल का एरिया, ये टोटल एरिया निकाल रहे थे 2 थीटा पकड़ के, इसलिए यहाँ पे 2 थीटा इक्वल्स टू वो पाई आर स्क्वायर क्या थीटा वाई स्क्वायर आया था, ठीक है। लेकिन इन दिस केस इन ट्रेपेजॉइडल वी आर ओनली कंसिडरिंग थीटा, ठीक है। तो थीटा ये एंगल सब्सटेंड करने के लिए ये एरिया कितना है, ये वाला स्लाइस का एरिया कितना है, दैट इज योर थीटा बाई 2 वाई स्क्वायर, ठीक है, और वही हमको यहाँ पे पुट करना है। सो 2 इंटू इसका तो हम लोग बोले थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये है, ठीक है, 2 इंटू एरिया नंबर 2 कितना है, एरिया नंबर 2 है हाफ थीटा बाई 2 वाई स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 से, दोनों तरफ है इसीलिए, ठीक है, प्लस दिस इज b इंटू वाई, एरिया इज b इंटू वाई, ओके, रेक्टेंगल का एरिया, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे सो वी विल गेट दिस वन एरिया। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सिंपली एड ऑल दिस, थीटा दिस इज y, सो दिस इज r थीटा मतलब क्या है y थीटा, रेडियस इनटू थीटा, दैट इज रेडियस इज y थीटा है, सो ये आर्क का लेंथ विल बी y थीटा, सो y cot थीटा प्लस b y थीटा y cot थीटा, ठीक है, वही सब आ रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर, ओके, क्लियर है ये वाला। तो देखो यहाँ पे y स्क्वायर कॉमन ले लिया तो cot थीटा प्लस बी वाई होगा, यहाँ पे 2y कॉमन ले लिया cot थीटा प्लस बी, ओके। सो रेडियस हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस विल बी एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर, सो कमिंग आउट टू बी दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला है तुम्हारा क्या बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल के लिए, ओके, एंड तुम्हारा वो वाला क्या था एरिया के लिए, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूला और ट्रायंगुलर के लिए, क्लियर। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं था ना पिछले वाले में, देखो ये एंगल हमको चाहिए था, थीटा के लिए हमको कैलकुलेट करना चाहिए था यहाँ पे, इसीलिए थीटा होगा, 2 थीटा नहीं होगा, ओके। आई थिंक क्लियर, ডাউট থাকলে বলো। আমি প্রিভিয়াস ফর্মুলার সাথে শুধু এটা যোগ হবে তাই? हाँ, शुद्ध देखो प्रीवियस का जो भी फॉर्मूला है उसमें सिर्फ देखो ये रेक्टेंगुलर एरिया ऐड हुआ है तो बी वाई होगा, ठीक है, और पेरीमीटर में क्या ऐड हो रहा है, सिर्फ ये बी ऐड हो रहा है, इसलिए बी ऐड होगा, क्लियर। एरिया में बी वाई ऐड होगा, इसमें बी ऐड होगा, सिंपल, ठीक है, और ऐसे डिराइवेशन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। So in the next class we will solve the problem based on this formula as well as some design steps, okay, we will give you the design steps. Okay then, thank you. তোমরা আসতে পারো। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome.